celebrating the golden jubilee of Meghwal Shikshan Prachar Kendra. From 1975 to 2025, 50 years of educational excellence. બીજા અમે લોકે વન ઓફ ધી જેને આ સંસ્થાની સ્થાપના કર્યા એમાંના એક સંસ્થાની સ્થાપના સુરેશભાઈ, પ્રોફેસર સુરેશભાઈ બારિયા, લલિતભાઈ અને ઘણા મિત્રો હતા જે અમારા સોવિનિયરમાં આપેલા છે બધાના નામ. અને સુરેશભાઈના ધર્મપત્ની સંતોષબેન આવી શક્યા નથી, નાદુરસ્ત તબિયતથી. એમને પ્રતિનિધિ છે એટલે આવે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે આ સ્થાપક સભ્યો તો જે સ્થાપક છે એનું ખૂબ ખૂબ સન્માન કે આવી જાઓ. જયસિંહભાઈ સોલંકી વન ઓફ ધી સ્થાપક સભ્ય અને અમારા મેમ્બર પણ છે જયસિંહભાઈ સોલંકી. જયસિંહભાઈ મારું અમારા વન ઓફ ધી જયસિંહભાઈ મારું ને વિનંતી કે આવી જાય. આ અમારી સંસ્થાના બે પિલર છે જે સ્થાપક વખતથી અમારી સાથે છે, સ્થાપના વખતથી. હવે આપણે આ વિધિવત આજના સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવનું માનનીય આપણા વિભાગના સંસદ સભામાં આપણે તાળીઓથી सर जास्त वेळ तर काय आम्ही मराठीत बोलू शकणार नाही, पण तरी पण जे काय जमेल ते थोडंफार तुमचं आम्ही स्वागत करतो. आणि आम्ही भले भाषाने आम्ही महाराष्ट्रीयन नसेल पण आम्ही जन्माने महाराष्ट्रीयन झालो. And by the way, as a side track, એટલે આજે થોડું આપણે અરવિંદ સર ને આપણે થોડું ગુજરાતી પણ શીખવાડશું. તો હું સૌથી પહેલા અમે 83 માં બાલ મંદિરમાં ફરી પાછા રાત્રિ ક્લાસીસ શરૂ કર્યા અને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આપણે નાના બાળકોને ભણાવીએ છીએ પણ આ તો ફક્ત ભણાવવા પૂરતું છે, બાળકોનું કંઈ ખબર નથી પડતી. પણ મેઇન વસ્તુ શું છે કે એસએસસી ના છોકરાઓ, એટલે એસએસસી ના છોકરાઓને ખાસ ટ્રેન કરવા માટે થઈને 15 દિવસના એવરી યર અમે એમ્બ્યુલન્સ ગેરેજની અંદર એસએસસી વ્યાખ્યાનમાળા આપણે શરૂ કરી અને જે 35 યર્સથી એસએસસી ના છોકરાઓને 15 દિવસ સુધી આપણે અહીંયા મ્યુનિસિપલ એમ્બ્યુલન્સ ગેરેજની અંદર ભણાવતા હતા. જોકે એના માટે પણ ખૂબ ટ્રબલ હતી કારણ કે અને એ વખતે અમે ભણાવતા હતા એટલે ગુજરાતી માધ્યમ હતું. અત્યારે એ વ્યાખ્યાનમાળા અમે બંધ કરી છે કારણ કે અત્યારે ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ મળતા નથી. અને બીજું કારણ એ પણ કે 2019માં કોરોના આવ્યું અને કોરોનામાં આપણને સરકારના નીતિ નિયમો પ્રમાણે કોઈ કંઈ કરવા દેતા નહોતા. અને બીજું કારણ એ હતું કે ગુજરાતી માધ્યમ બંધ થઈ ગયું. એટલે એસએસસી ની વ્યાખ્યાનમાળા આપણે 2019 થી બંધ કરી. પરંતુ સંસ્કાર વ્યાખ્યાનમાળા કે જે 5 દિવસની વ્યાખ્યાનમાળા જે છે જેના આજનો આ પ્રથમ દિવસ છે એ પણ ડિસેમ્બર મહિનામાં આપણે શરૂઆત કરી અને એનો ઉદ્દેશ બી એ જ હતો. દાખલા તરીકે કદાચ આપણે કોઈ એમ કહીએ કે તમે કોઈ સ્તુતિ કરો છો કે ભગવાનની પૂજા કરો છો પણ કંઈક પદ્ધત તો કરવી પડે ને. તો અમારે લોકોને શિક્ષણ આપવું છે કે લોકોને શિક્ષણ પ્રત્યે દોરવા છે તો કંઈક પ્રવૃત્તિ તો કરવી જોઈએ ને. તો જે વડીલો કે જે મોટેરાઓ કે જેને જે વધુ નોલેજેબલ માણસો જે છે એની સાથે મુલાકાત કરાવી દેવી, એ લોકોનું જે નોલેજ છે લોકો સુધી પહોંચાડવો અને એ પ્રમાણે ડિસેમ્બર બાબા સાહેબ આંબેડકરની સ્મૃતિમાં આપણે ડિસેમ્બરની અંદર આ વ્યાખ્યાનમાળા આપણે કરતા હતા. અને આ જર્નીની અંદર એને આજે આપણું આ 40મું વર્ષ છે
આ આપણું 40મું વર્ષ છે અને એના વચ્ચે રોટરી ક્લબ સાથે આપણે મળી અને કીપ ફિટના પ્રોજેક્ટ કર્યા. વચ્ચે એક વખત આપણે હોમિયોપેથિક દવાખાનું શરૂ કર્યું હતું. દવાખાનું એટલે હવે મને દવાખાનું એટલા માટે દવાખાનાની વાત આવે છે ને એટલે મને તરત શિવસેના પક્ષ યાદ આવે છે. કારણ કે અમે ડોક્ટર કમ્પાઉન્ડ સાહેબ અમે ડોક્ટર કમ્પાઉન્ડમાં હતો તેવા અરવિંદ સર 5 માં આવેલા. આજે દુનિયાને ઊંધા ચશ્મા તારકભાઈ ના ઊંધા ચશ્મા એ અત્યારે ફેમસ થયું છે. તારક મહેતાને અત્યારે લોકો ઓળખે છે, પરંતુ આપણે સમાજ સાથે તારક મહેતાની ઓળખાણ આપણે એ વખતે 1985 માં જ કરાવેલી. અને એ જ વખતે મેં હમણાં કીધું એ પ્રમાણે હોમિયોપેથિક દવાખાનું શરૂ કરેલું અને એ વખતે ડોક્ટર પ્રકાશ વકીલને બોલાવેલા. ત્યારબાદ એ જ એના 86 માં પ્રથમ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી કે જે આપણા સમાજની હતી અને જેના ડોક્ટર હતા ડોક્ટર ઇન્દુબેન હિન્દુજા, જેને આપણે અહીંયા આર્થરોડની અંદર બોલાવ્યા હતા અને એમનું લેક્ચર રાખ્યું હતું અને આપણે એમનું સન્માન કર્યું હતું અને ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીના મમ્મી પપ્પાનું પણ આપણે સન્માન કર્યું હતું. એટલે હું આ તમને થોડું ઉપરથી કહેતો જાઉં છું. એ જ વખતે કદાચ સમાજના ઘણા શિક્ષિત હતું એકચ્યુઅલી એમનું, પણ કૂક મંડુક તરીકે એમણે ફેમસ હતા તો એમનું હતું. અને ત્યારબાદ જે આ સમાજ કે જે મુખ્યત્વે પાલિકાની સાથે કનેક્ટેડ હતો, તેથી પાલિકા કામદારોની મુશ્કેલીઓ માટે આપણે એ વખતના જુંજાર નેતા શ્રી શરદ રાવને વિષયો આપી અને વક્તાઓ આપીને છે ને જે આવનારું જે ભવિષ્ય જે છે જાણે કે અમે કઈ જ્યોતિષ હોય ને એની જેમ અમે વિષયો પીરસતા હતા. ત્રાસવાદી સંસ્થાઓ જે ટેરરિઝમ ને જે કહેવાય છે એના પર આપણે લેક્ચર્સ રાખ્યા હતા. પછી કવિ શ્રી કિશનભાઈ સોસા, સોનલ શુક્લ શબ્દ मेघ ऋषि से मेघवाल समाज, और ये मेघवाल समाज के बाबा पीर महादेव, संत कबीर और हमारी माता माकर माता मातंग माता, इनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ. और आज महाराष्ट्र में हूँ तो मैं पहले शुरू मराठी में करता हूँ. तुला सगळ्यांना मराठी चांगलं येतं. सगळ्यात आनंदाचा दिवस आहे. सुवर्ण महोत्सवी जयंती. 50 वर्ष एका शिक्षण संस्थेला होतात त्याच्यासारखा मोठा आनंद नाही. आणि त्या शिक्षण संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवाला उपस्थित या देशाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे माननीय चेअरमन किशोरभाई मकवाना साहेब, सन्माननीय श्री सुरेशभाई बारिया, ललितभाई बारिया, मावजीभाई राठोड, मोहनभाई मकवाना, भरीशभाई मकवाना, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, उपस्थित बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, मी त्याचं सगळं समजत होतो. 1925 पासून कशी शिक्षण संस्था होती तुम्ही पण ऐकलं पाहिजे. आणि मी ऐकत होतो. आई वॉज लिस्निंग टू हिम, पूरा सुन रहा था. यही तो एक देश की खासियत है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उसका गर्व है. लेकिन महात्मा फुले जी है जिन्होंने शिक्षा का प्रचार शुरू किया. और सावित्रीबाई फुले की जिसकी वजह से महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले हुए. अब उस शिक्षा का एक मैं आपके लिए जानकारी देता हूं. महाराष्ट्र में कर्मवीर भाऊराव पाटिल हुए, और ये कर्मवीर भाऊराव पाटिल जैसे आप भी हो, वो खुद ज्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन उनको पता चला कि शिक्षा के बिना आगे नहीं जा सकते. तो जो आप बता रहे थे ना, गांव में जाके लोगों को मिलते थे, या स्कूल शुरू करना है, बच्चे को भेजो, इतनी फी होगी, नहीं तो मुफ्त में मिलेगा, वो सारी चीजें अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाना प्रबोधनकार जी ठाकरे, ये कर्मवीर भाऊराव पाटिल जब उनसे मिले तो बोले स्कूल के लिए पैसा जमा करना है.
कर्मवीर भाऊराव पाटिल को लेकर प्रबोधनकार ठाकरे साहब 10 लगत आते थे, तो एक बार महात्मा गांधी जी के पास भी गए। अब ठाकरे ठाकरे है भाई, उनकी स्टाइल देखो, मैं बताता हूं एक उदाहरण। तो जब वो कर्नल बाबूराव पाटिल जी ने कहा महात्मा गांधी जी आए हैं, चलो कोशिश करते हैं उनसे भी कुछ मदद मांगे, तो महात्मा गांधी जी भी मतलब कुछ बोली, इतने बड़े इंसान थे। तो प्रबोधनकर ठाकरे और कर्नल बाबूराव पाटिल उनके पास गए और बोले कि भैया यहाँ हम शिक्षा के माध्यम से स्कूल शुरू करना चाहते हैं, कुछ मदद आप करिए हमको। तो महात्मा जी ने कहा मैं तो फकीर हूं, देखो कैसे खुले ज्यादा धोती भी घूम के कुछ नहीं पहनता, ऐसे घूमता भी, तो मेरे पास कहां से आए। तो ठाकरे साहब कैसे बोले, हाँ फकीर है, टाटा मर्सिडीज की गाड़ी में घूमता है, तो पैसे तो देता हूं। ये कहने की हिम्मत, ये कहने की हिम्मत देखो प्रबोधनकार ठाकरे जी के, आप फकीर हो लेकिन मर्सिडीज कार में घूमते हो। क्योंकि उस वक्त बचा दिला सब लोग बड़े लोग महात्मा गांधी जी को साथ दे रहे थे देश की स्वराज की लड़ाई के लिए। तो महात्मा गांधी जी हंसे, बोले तुम बहुत होशियार हो। उसको बाद में उन्होंने डोनेशन दे दिया। मेरा इतना ही कहना है कि ये संघर्षमय जीवन है, और हमारे बकवानी साहब को भी मैं आज विनती करता हूं, शिक्षा तो मिलेगी, संस्कृति का क्या, संस्कार का क्या। हम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन हमारा बर्ताव जब हम देखते हैं करप्शन की केसेस हो या देश के प्रति देशद्रोह की कार्रवाई करने वाले भी बच्चे इंजीनियर हैं, ये मत सोचो कि गंवार है वो। पढ़े लिखे लोग जब ऐसी स्थिति करते हैं तो इनकी मानसिकता, जो मानसिकता है ना, अभी हम शिक्षा दे पाएंगे, शिक्षा से भी सुसंस्कृत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज सुसंस्कृत लोग नहीं रहे, अगर रहते तो बिके नहीं जाते, क्योंकि बिकने वाले जब खड़े तो खरीदने वाला तो होगा ही ना। हम राजनीति में भी देख रहे हैं, लोग बिके जा रहे हैं और खरीदे भी जा रहे हैं। ये तुम्हारी शिक्षा का रास है, ये शिक्षा का रास है, अदब पतन। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, क्यों कपड़े पहने, कभी सोचा धोती क्यों पहनी, क्यों नहीं टाई लगा के घूमे हो, घूम सकते थे ना। वैसे भी तो बैरिस्टर थे, ऐसे थोड़ी गंवार थे। लेकिन उनका हर वक्त ये कहना था, सबसे सीढ़ी पे नीचे वाला जो आदमी है उसका उत्थापन करना है। उसकी जो हालत है वही हालत में उससे रहूंगा तो मुझे एहसास होगा गरीबी क्या होती है। आज गरीबी का भाई एहसास नहीं है, ना शिक्षा के अदब पतन का एहसास है। मेघवाल समाज, इसका इतिहास बड़ा अलग है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं, मैं बता रहा हूं, मैं कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। आप लोग पढ़कर स्टेट बैंकों में गए, कुछ लोग गए, कुछ लोग आज भी इतने पिछड़े हुए कि पूछो मत, उनको ऊपर लाना है। और ये शिक्षा चाहिए, तो इसके लिए बाबा साहेब आंबेडकर जी का वाक्य मराठी में हो, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। पहले शिका, फिर संगठन करो, फिर संघर्ष करो। लेकिन उसके आगे एक वाक्य उन्होंने बहुत बढ़िया कहा था कि एक बार संघर्ष न करा तो भी चलेगा, अगर आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन खुद को बेचना नहीं कभी। बहुत अच्छे। एक बार संघर्ष केला नाही तरी चालेल, विकले जाऊ नका। आज लोक विकली जात आहेत ना, आम्ही टीव्हीवर बघतोय, तुम्ही पाहताय, तेव्हा दुःख झालं पाहिजे। ये देखकर वेदना होनी चाहिए, मेरा समाज कहां जा रहा है। जो लोग बिक जाते हैं वो ये नहीं सोचते मैं कहां बिक जा रहा हूं। अंग्रेजों ने तो यही किया था ना, तभी तो राज कर पाए ना। पूरा इतिहास भी जाएंगे तो वही मिलेगा अपने को। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास भी देखेंगे तो सामने वाले ने कहा मैं तुझे मनसबदार करता हूं, सरदार बनाता हूं, 50 गांव तेरे हाथ में देता हूं, लेकिन भूल गया 50 गांव का तू होगा, फिर भी उस मुगल राजा का गुलाम होने वाला हो। खुद का स्वराज नहीं होता। स्वराज और गुलामी में क्या फर्क है, वही शिक्षा और संस्कृति में फर्क है। वो फर्क अगर महसूस हुआ और उसमें सुधार पाने की कोशिश की तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा, तुमच्यासाठी एक कविता सांगतो, साहेब ऐकलं का?
तुमच्यासाठी महात्मा फुलेंचं एक कविता आहे, ते फार वैशिष्ट्य आहे. विद्या विना मती गेली, विना विद्या से मती गई, बुद्धी गई. विद्या विना मती गेली, मती विना गति गेली. मती नहीं तो गति कहां से आएगी, बुद्धि नहीं तो गति कहां से. विद्या विना मती गेली, मती विना गति गेली, गति विना वित्त गेली. वित्त गेलो तो पैसा क्या, गति नहीं तो पैसा कहां से कमाएंगे, शिक्षा से. गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले. हम लोग उसको शूद्र मिद्र चलो चातुर्वर्ण्य बहने हम तो मानते नहीं, न बाला साहब मानते थे. फिर भी उस वक्त की बात है, चातुर्वर्ण्य में शूद्र शेड्यूल कास्ट. वित्ता विना शूद्र खचले, एवढे नुकसान एका अविद्येमुळे झाले. बिना शिक्षा की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ. वो नुकसान से बाहर निकलने के लिए हमारा मेघवाल शिक्षण प्रसारक केंद्र काम कर रहा है. इसके लिए मैं उसकी सराहना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ. ऐसे आगे बढ़ते रहो. आपको जो भी काम लगे, जरूरत पड़े तो बकवाना सब तो ही है, वो तो अधिकार है उनके पास ज्यादा. हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम इनको चिट्ठी लिखते हैं. चिट्ठी लिखने के बाद काम करना इनका होता है, तो इनसे काम भी करा के ले सकते हैं. अच्छा हुआ बकवाना साहब आइए, आप आशीर्वाद दिए, आप भी आशीर्वाद देने वाले हो. कुछ जो मुझे एक चीज बात बतानी है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी भी राज्य सरकार हो, सरकार किसी भी की हो, सरकार सरकार है. लेकिन सरकार की योजनाएं बहुत आती है सर, उसका प्रसारण नहीं होता, प्रचार भी नहीं होता. हम मुद्रा कहते हैं, स्टैंडअप कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी अच्छा लगता है. कभी तो सोचो कि हमारे मेघवाल समाज के इतने बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या करना चाहते हो, नौकरी क्या करना चाहते हो, धंधा, चलो आ जाओ मेरे पास, मैं आपके लिए, हमारी सरकार केंद्र की सरकार की तरफ से ये योजना है, इस योजना का लाभ उठाओ और आगे चलो. मेरा मेघवाल समाज का बच्चा भी गाड़ी से घूमना चाहिए आपके पास. ये काम होना चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए. और इच्छा के लिए मैं आज आपको कहता हूँ, शिक्षा प्रसार तो जरूर करूं, लेकिन लक्ष्मी, जब सरस्वती का पूजन करते हो तो लक्ष्मी का भी पूजन करो. लक्ष्मी भी जरूरी है. लक्ष्मी को ऐसा है, लक्ष्मी ऐसा नहीं, ठीक है. गलत रास्ते से लक्ष्मी मत पाओ. 2 नंबर का धंधा नहीं करना, जो करना है वो सीधा करो. इनकम टैक्स भी भरो, लेकिन गाड़ी घुमाओ, चलेगा, अच्छा लगेगा. तो शिक्षा के साथ में, सरस्वती के साथ में लक्ष्मी भी मिले, ऐसी शुभकामनाएं देकर आपसे विदाई लेता हूँ. मेरे वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तिथून आपले सगळे पॉलिसी मॅटर फ्लो होतात, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट. मतलब मेरा गरीब का बच्चा जिला परिषद स्कूल भी जाता है, या मुंबई महापालिका शहर में तो मुंबई महापालिका का स्कूल भी जाता है. जिसके पास पैसा है वो ICSE में भेजता है, थोड़ा ज्यादा है वो CBSE में भेजता है, उससे डबल पैसा है वो इंटरनेशनल बोर्ड में भेजता है. और ये जो बच्चों में एक अहंकार पैदा हो जाता है. मैंने अनुभव कर दिया सर, चुनाव के समय ये ट्विन टावर है ना अपने दारदेव में, वहां मैं गया तो लोगों ने पहला चुनाव था 2014 वाला, क्या करने वाले. बोले शिक्षा के बारे में मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबको शिक्षा मिले, अच्छी मिले. एक लड़की छोटी बच्ची खड़ी रही, क्यों, मतलब क्यों, मतलब व्हाट डू यू मीन, यू हैव अ प्रिविलेज टू गेट अ बेटर एजुकेशन देन द अदर पीपल. व्हाट इज दैट, जस्ट बिकॉज यू हैव अ मनी. माय पुअर मैन आल्सो शुड गेट अ सेम क्वालिटी एजुकेशन. और इसके लिए मैंने कहा कि राइट टू क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए. आज हमने वो कर दिया है. आपको पता है मुंबई शहर में मुंबई पब्लिक स्कूल शुरू कर दिया. ये मुंबई पब्लिक स्कूल सर, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रनिंग अ मुंबई पब्लिक स्कूल वेयर CBSE, ICSE, IB, GSE ये सभी बोर्डों के शिक्षा उतना ही देर मुफ्त में सिखाया जाता है. ये मुंबई महानगर पालिका का काम हमारे आदित्य जी ठाकरे ने किया है. और आप जो लाल कलर की मरून कलर की बिल्डिंग दिखती है ना, मुंबई पब्लिक स्कूल, इट्स नॉट अ प्राइवेट स्कूल, इट्स अ स्कूल रन बाय द मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. फ्री एजुकेशन, CBSE, ICSE जिसको लाखों रुपया फी भरना पड़ता है, वो मुफ्त में हम लोग पढ़ाते हैं. वही ये काम करना चाहिए. धन्यवाद. इन्स्टिट्यूट आहे आणि आम्ही एज्युकेशन बद्दलच आमचे प्रश्न असतात. सर आमच्या लक्षात असं आलं आहे
की मी जे म्हणत होतो की देशाचे जे काही पॉलिसी मॅटर आहे ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटवरनं तिथून फ्लो होतात आणि आपण आमच्या विभागातले म्हणजे आमच्या समाजाचं एक रिप्रेझेंटेशन करतायत, तर आम्ही आमच्या समाजाची जी एक दुःख वेदना आहे ती आम्ही आमच्या संस्थेने ठरवलं आहे आणि ती वेदना आम्ही तुम्हाला हँडओव्हर करतोय. ती काय आहे, असं आहे की पूर्वी म्हणजे एजोन पुढे पण बरेचसे काही गव्हर्नमेंटचे रेस्ट्रिक्शन असतात, लायसन्स पॉलिसी असतात किंवा वेगवेगळे प्रकारचे हर्डल्स असतात आणि ते हर्डल्सनं प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये सगळे रिमूव्ह केले. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये सगळे हर्डल्स रिमूव्ह केले आणि सोशल फॅक्टरमध्ये म्हणजे जे कोण SC ST किंवा OBC जे कोण आहेत त्यांच्यावरचे जे काय हर्डल्स आहेत ते तसेच आहेत, त्याच्यावर काही फरक नाही. म्हणून आमचं म्हणणं असं आहे, आमच्या संस्थेचा असं म्हणणं आहे की सर आमचे प्रत्येक स्टेटमध्ये SCचे जे काही सब कास्ट आहे वगैरे वेगवेगळे असतात. उदाहरणार्थ आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 59 आहे आणि आमच्या गुजरातमध्ये 36 आहे. सर आमचं म्हणणं असं आहे की हा 59 पैकी किंवा 36 पैकी कुठलीही 3 सबकास्ट जर एकत्र आली आणि त्यांनी कुठल्याही विभागामध्ये आपल्या खर्चानी स्वतःच्या फंडिंगनी जमीन घेतली, स्वतःच्या खर्चानी बिल्डिंग बांधली, त्यावेळी सरकारने त्यांना कुठल्याही प्रकारचा आडवण न ठेवावं म्हणजे एक ओपन परमिशन आमच्या क्लाससाठी आमच्या वर्गसाठी या देशाच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीमध्ये आलं पाहिजे. जसं आम्हाला रिझर्वेशन मिळतं, रिझर्वेशन किती कमी झालंय ते सगळ्यांना माहिती आहे, पण आता आम्ही बिंग एज्युकेशनल ऍक्टिव्हिटीज आमचं म्हणणं असं आहे की पूर्ण ह्या देशामध्ये हा नियम लागू केला पाहिजे की कुठल्याही स्टेटमध्ये किती 3 मिनिमम सबकास्ट एकत्र आली आणि त्यांनी आपल्या पैशानी जर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट उभारले म्हणजे कॉलेज उभारला किंवा डीम्ड युनिव्हर्सिटी उभारली तर त्यासाठी गव्हर्नमेंटची परमिशन ओपन असावं, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्यांना अडचण न असावा एवढी आमची मागणी आहे आणि ती मागणी आम्ही तुम्हाला लिहून देतोय. आमच्या प्रमुख श्रींना विनंती करतो. थँक्यू. मला एका गोष्टीचं कळलं नाही, 3 का? एक जण असला तरी काय हरकत आहे? अरे 3 कशाला पाहिजे? माझ्या गरीब समाजाचा, मागास समाजाचा 3च पाहिजे, कंपल्सरी. एका कायदा आहे का असं 3 पाहिजे? एक मिनिट, कारण हा अच्छा बरोबर आहे, सध्या मोनोपोली चालू आहे इंडिगोची. 3 याच्यासाठी मिनिमम, कारण ना कुठल्याही एकच समाजाचा आली तर पण ही आनंदाची गोष्ट आहे की 3 समाज एकत्र येतात. ही काही छोटी गोष्ट आहे का? ही पण मोठी गोष्ट आहे. पण तुम्हाला एक सांगतो, मी आता साहेबांशी पण बोललो, मग समाज म्हटलं 3 कशाला म्हणतात, ते एक असला तरी मिळालं पाहिजे. तर मी तुम्हाला आता एवढंच सांगतो की मी उद्याच्या लोकसभेच्या अधिवेशनात 0 प्रहरामध्ये हा विषय मांडणार म्हणजे मांडणार. सर एक फोटो प्लीज सर. વાંધો ને તમે કરો. અને સાથે સર જતા એક રિપ્રેઝન્ટેશન અરવિંદ સર માટે આવ્યું છે. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અનુસૂચિત જાતિ સમાજ મહારાષ્ટ્ર, જે હું અમારા મોહનભાઈને કહું છું કે અરવિંદભાઈને આપે. સર એક કાસ્ટ વેલિડિટી का प्रॉब्लम है. मधला रेसिडेन्शियल प्रूफ जरा आपला महाराष्ट्र झालं ते 1961 चा इम्प्लिमेंट करा.
60च्या नंतर થેન્ક યુ સર. હવે હું મોહનભાઈને વિનંતી કરું છું કે કિશોરભાઈ મકવાણાનો પરિચય આપે, વિષયની વાત કરે અને આગળનું કરે. બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત આપણી સમાજના સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેમ હોય છે એના લીધે જ આ જે સંસ્થા આ 50 વર્ષ પૂરા કરી અને આગળ ષષ્ઠી પૂર્તિ તરફ આગળ વધી રહી છે. કિશોરભાઈનો જે પરિચય છે એ અમે આના અંદર તમને આપ્યો જ છે. થોડો આપણો સમય વધુ થઈ ગયો છે એટલે હું બહુ સમય તમારો નહીં લઈશ, પણ ટૂંકમાં એટલું જ કહીશ કે જે એસસી કમિશન છે આખું ઓલ ઇન્ડિયા લેવલનું, જે આપણા લગતા પ્રશ્નો બધા કંઈ પણ જે ઉપસ્થિત થતા હોય એ નેશનલ લેવલના તે સાહેબ પાસે જતા હોય છે તેમની ઓફિસમાં. અને આપણા બધા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે કે આપણી સમાજમાંથી આપણા પોતિકા એવા આયોગ આવી રીતે કામ કરતો હોય છે, એટ્રોસિટી આ તેવું બધું. પણ અમારું બધાનું એવું માનવું છે કે જ્યારે કિશોરભાઈ આવ્યા છે તો હજી આપણને ડિટેલમાં આનો પરિચય કરાવે, આયોગ કેવી રીતે કામ કરે છે, એની કાર્ય પદ્ધતિ શું છે. તો આજનું આ પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં પ્રથમ પુષ્પગુચ્છ રીતે આ પ્રથમ પ્રવચન આજે આપણે શરૂ કરી રહ્યા છે 40મા વ્યાખ્યાન માળાનું. તો હું મંચ પર કિશોરભાઈ મકવાણાને આમંત્રિત કરું છું. કિશોરભાઈ. મંચ પર વિરાજમાન સંસ્થાના પ્રમુખ નલિનભાઈ મકવાણા, સંસ્થાના ફાઉન્ડર લલિતભાઈ, અન્ય મહાનુભાવો તેમજ આપ સૌ. એ બહુ કઠિન યાત્રા હોય છે, બહુ જ કઠિન યાત્રા હોય છે. કઠિન એટલા માટે છે કારણ કે કોઈ પણ સંસ્થાને ચલાવીને અને એક સંપતન એટલે બધા મળીને એક જ દિશામાં પોતાનું જે ગંતવ્ય સ્થાન છે, ઉદ્દેશ છે, સંકલ્પ છે, સપના છે એ લઈને એક જ દિશામાં ચાલવું ને એ બહુ જ અઘરું હોય છે. કારણ કે વ્યક્તિઓ હોઈએ છે ને વ્યક્તિઓ હોય ત્યાં પોતાના મનોવલણો હોય છે, અને મનોવલણો આપણને બધાને ખબર છે કે કેવા પ્રકારના નાના વાતમાં પણ ઝઘડા થતા હોય છે, અને ઝઘડાને લઈને આખી સંસ્થા વેરવિખેર થઈ જતી હોય છે. એવા માહોલની અંદર આ મેઘવાળ શિક્ષણ સંસ્થા 50 વર્ષ પૂર્ણ કરે એ ખરેખર મારા દ્રષ્ટિએ એક કઠિન સાધના છે, અને હું અંતર્મનથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું કે હજુ એની શતાબ્દી પૂર્ણ કરે. વિનંતી કે કિશોરભાઈને શોલ આપીને એમનું સન્માન કરે. એક અમારું સન્માન ચિહ્ન યાદગીરી રૂપે આજના કાર્યક્રમનું સન્માન ચિહ્ન નરેશભાઈ આપે છે. ગ્રુપ ફોટો આપીએ સર. એક સર અડધા નીચે આવતો નીચે આવતો ચાલશે. નીચે આવતા નીચે વયા જાઓ. થોડા મેમ્બરો નીચે વયા જાઓ. ના તમે ઉભા રહો ને, બીજા મેમ્બરો નીચે. હા પુષ્પગુચ્છ. યસ સામેદાન. लोकांनी मिळून
आपला आर्थ रोडचा लक्ष्मीनारायण मंदिर वाचवलं आहे आणि या मंदिरसाठी आमच्या बरोबर आमच्या संघर्षचे साथी आहे ते आणि अजूनही संघर्ष गोष्ट आणि खूप असं सांगू की आनंदाची गोष्ट ही आहे की हा संघर्षामध्ये किशोरीताई आमच्या बरोबर आहे आणि परत नगरसेविका म्हणून त्या एरियामधून आले आहे म्हणजे त्यांना आपला प्रॉब्लेम जे आहे ते बरोबर माहिती आहे. जर त्या ठिकाणी दुसरा कोण नगरसेवक आला असता तर आपल्याला जे सपोर्ट मिळाला पाहिजे ते कदाचित मिळाला नसता. पण किशोरीताई आपल्या बरोबर आहे त्यांचं मी खूप खूप स्वागत करतोय. जे कॉर्डन करून दिलं आहे त्याच्यामध्ये एक व्यवस्थित गेट आणि व्यवस्थित वॉल बांधून दिला तर कारण काय ते बिल्डरचे लोक तिथून येतात जातात आणि डिस्टर्ब करतात. तर ते जर एक काम झालं तर ताई खूप खूप तुमचा आम्ही अभिनंदन आहे आणि आम्हाला त्यांनी डीएमसी बरोबर पण बरेच मीटिंग करून दिले. तर किशोरीताईचं स्वागत. किशोरीताईला विनंती की 2 शब्द आजच्या हा आमचा 50व्या वर्षासाठी. जय महाराष्ट्र. राधे राधे. मेघवाल शिक्षण प्रसार केंद्राचं आज 50वा वाढदिवस आहे, बरोबर ना? बघा माणसाचं वय वाढलं ना की म्हणतात थकले, पण संस्थेचं वय वाढलं की म्हणतात आता खऱ्या अर्थाने वयात आली. हळूहळू कार्य वाढतं आणि ते कार्य इतकं वाढतं की तुम्ही अभिमानाने सांगू शकता की प्रत्येक घरामध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून जी व्यक्ती मोठी झाली आहे ती आमच्या ह्या प्रसार केंद्राच्या मेघवाल शिक्षण प्रचार केंद्र मधून झाली. घंटी वाजवायची नाही. शाळा सुटलेली नाही अजून. डर अच्छा है नहीं, डर अच्छा है, रहने दो अपना ये अच्छा कार्यक्रम है तो आधा घंटा 1 घंटा चलता है. हाँ बाबा नाच गाना है नहीं, टाइम टू टाइम होना चाहिए, वो नहीं. जाऊ दे. तुम्ही सगळ्यांनी या निवडणुकीत ज्या पद्धतीने सपोर्ट आम्ही तुम्हाला दिला पण तुम्ही त्याच्यापेक्षा आम्हाला पुन्हा 5 वर्षाचा सपोर्ट जो दिलाय ना, मी तुम्हाला मनापासून नमस्कार, हॅट्स ऑफ. कारण संधी देणं आणि त्या संधीचं सोनं करणं, त्या संधीचं सोनं आम्ही ऑलरेडी करत आलोय, करत राहणार. तुम्ही आता जे सांगितलं वॉलचं 100% मी सांगते मार्ग काढून आपण ती वॉल बनवणार म्हणजे बनवणार. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात. तूच आणलं ना. काही गोष्टी पॉसिबल नसतात, त्या पॉसिबल जेव्हा होतात तेव्हा समजायचं त्या ग्रामदेवतांचा आम्हाला आशीर्वाद आहे. ग्राम दैवत आपका दैवत है लेकिन हमारा ग्राम दैवत है. जिस ग्राम में हम काम करते उस ग्राम का दैवत का आशीर्वाद होना जरूरी है. और मैंने कभी भी ये बच्चे लोग सब है उधर, उनको पूछो 10 वागे फोन करे या 2 वागे. मला तेवढी भाषा येत नाही पण फोन उचलून नुसता रिप्लाय नाही तर त्याच्यावर अंमल करणं. बरेचसे आमचे कर्मचारी आहेत, कर्मचाऱ्यांना माहिती आहे माझा दणका तिथे कसा असतो. हाइट पे मत जाओ, वो भगवान की देन है. लेकिन जो 5 फुट का नहीं कर सकता ना वो मैं कर सकती. तो उनके हाइट बरोबर ये भी चाहिए ना और ये भी चाहिए ना, तो ये इधर और ये प्रॉब्लम और है ऐसे.
ऐसे लोग हैं जो हमारा अपोजिशन अभी था तो वो ऐसे ही, अरे बाबा रुक, उम्मीदवार है, थोड़ा नम्र, थोड़ा ये करके काम करो ना। ठीक है, जो हुआ हुआ, आपके साथ 5 साल के लिए, भगवान के साथ है। और मुझे एक अच्छा लगता है, जब भी मैं सालनपुर जाती हूँ तभी मुझे रामदेव नगर नहीं तो मेघनगर कोई औरत ताई माई मिलती है, नहीं तो बच्चे लोग मिलते हैं, लेकिन मिलते पक्के, क्योंकि मैं हर महीने में सालनपुर जाती हूँ। मेरा इतना विश्वास है कि उन्होंने जो भगवान अपना हनुमान जी है, उसका विश्वास इतना है कि उन्होंने बारिश को भी रोक दिया था। तो मेरा विश्वास आहे, हे विश्वास की बात आहे। मी एवढंच सांगेन, येणाऱ्या 3 वर्षात आपण इतकं काम उभं करू की पुढच्या वेळेला महाराष्ट्राची सरकार ही आपली आणू। आणि आदित्य उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे विजन आहे। त्यांनी महापालिकेबद्दलच्या विजन ज्या मांडल्या, या आमचे कर्मचारी असतील त्यांना माहिती आहे, जितकं जास्त काम बघा, थोडस घुमा के बात करती हूँ। आप भी भगवान को मानते, हम भी मानते, खाली रूप अलग अलग होगा, लेकिन भक्ति वही, देने वाला शक्ति भी वही। अपनी भक्ति 16 प्रकार की होती है, किसी को 2 प्रकार की होती है, किसी का 1 प्रकार का होता है, किसी का बिल्कुल नहीं होती, तो भी भगवान ख्याल रखता है। भगवान ख्याल रखता है तो उसकी मर्जी ऐसी भी होती है, काम करने वाले को दे दो। जो कर्म अच्छा करता है वो धर्म भी अच्छा करता है, और धर्म अच्छा होता है तो कर्म भी अच्छा होता है। इसलिए आपको मैं प्रणाम करने के लिए आई है। आपको जो आपने विश्वास दिया है मेरे से, वो कभी विश्वास टूटने नहीं देंगे। और बाकी विकासक हो वो उसका काम करे, हम हजारों दिलों का काम करें, एक का नहीं, हजारों दिलों का। हमें भगवान से देन आहे, आशीर्वाद आहे। तुम्हा सगळ्यांना पुन्हा एकदा नमन करून माझे 2 शब्द विराम देती हूँ। राधे राधे। खूप खूप आभार। ते आमच्यासाठी बघा, अवघड प्रश्न टाकून उत्तर मागणार असतील तर उत्तर तयार आहे। अवघड, ऐका, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असताना सगळ्या साईन झालेल्या होत्या, एक साईन बाकी होती, आणि त्याच्यामध्ये आजही फाईल तिथेच आहे। आता तुमच्या विनंतीला घेऊन आयुक्तांकडनं मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालून करुणा द्या, तर तुम्ही पण खरे, कारण घर कोण मागतंय? जो मुंबई साफ करतो, जो मुंबईचा श्वास चांगला ठेवतो, त्याला नाही घर देणार तर काल परवा आलेल्या लोकांना SRA मध्ये टाकून घर देणार, आम्हाला पण द्या। थँक्यू। किशोरी ताईचा सन्मान शाखा प्रमुख प्रज्ञा आरोप। अरे
ખૂબ ખૂબ આભાર તાઈ. જેવણ કરી થોડા હવે લલિત प्लीज सगळे बसून घ्या. प्रमुख श्री बेसिक એમનું સન્માન સુરેશભાઈ બાબરિયાનું સન્માન જયસિંહભાઈ સોલંકીને વિનંતી કરીશ કે સુરેશભાઈનું સન્માન ને નરેશભાઈ વાઘને વિનંતી, અમારા એક્સ પ્રમુખ નરેશભાઈ વાઘ કે અરવિંદભાઈનું સન્માન કરે. નેક્સ્ટ ઇન્દિરાબેનનું કામજીભાઈ લકુમ, ગલજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગોહિલ, હાલજીભાઈ કાળાભાઈ બોરીચા, હાલજીભાઈ કાળાભાઈ બોરીચા મારા ખાલી આવ્યા હતા. બેન તું આવી જા ને બાજુ, તું આવી જા. હું ધીરજભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેમનું સન્માન કરે. કાળજીભાઈ આળા બોરીચા એમને ધીરજભાઈ એમને સન્માન કરશે. એમના મોટા બાપુજી છે ઉદઘાટક તરીકે હતા છે નહીં ઉદઘાટક તરીકે છે કોઈ એનો હું સાક્ષી છું કે પ્રથમ વ્યાખ્યાન માળામાં હું સ્ટુડન્ટ તરીકે હતો અને આજે હું આ ઉદઘાટક તરીકેનું હું માન સન્માન લઈ રહ્યો છું. એ બદલ મને ગર્વ થાય છે સંસ્થા તરફથી. થેન્ક યુ. દર વર્ષે અમને એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં અને તન મન ધનથી સાથ સહકાર આપે છે. બાબુભાઈ સુમરાનું સન્માન અમારા નલિનભાઈ કરશે. આજની જમવાની વ્યવસ્થા પણ બાબુભાઈના થકી થઈ રહી છે, તો અહીંયા ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ બાબુભાઈનો. હંમેશા અમને સાથ સહકાર રહે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર બાબુભાઈ. થેન્ક યુ. રાણાભાઈ NSK પ્લીઝ આવી જાઓ. પ્રથમ સંસ્કાર કેન્દ્ર એ મને લાગે છે આપણા સમાજની પ્રથમ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, જેણે વાલપખાડીની અંદર એજ્યુકેશનનો પાયો નાખ્યો અને ત્યાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને સારી સારી જગ્યાએ અને કદાચ એમનાથી પ્રેરણા લઈને આર્થર રોડ ખાતે મેઘવાળ શિક્ષણ પ્રચાર કેન્દ્રની સ્થાપના થઈ હશે. એવા નૂતન અને નૂતન સંસ્કાર કેન્દ્રના મંત્રી તરીકે મને આ લોકોએ પ્રથમ વખત સુરેશભાઈની જગ્યા પર ભૂમિતિના સ્થળ તરીકે નિમ્યા. સાથે સાથે જે વ્યાખ્યાનમાળા એસએસસી વ્યાખ્યાનમાળામાં તો મેં શીખવાડ્યું જ, સાથે સાથે જે એ લોકોએ સંસ્કાર વ્યાખ્યાનમાળા શરૂ કરી એમાં પણ મને સમાજ સંરચના અને એના પ્રશ્નો એમાં વક્તા તરીકે મને એમાં પણ માન આપ્યું. એ બદલ મારા નૂતન સંસ્કાર કેન્દ્રના સર્વ સંચાલકો તરફથી એમને કોટી કોટી નમન અને અભિનંદન. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને અરવિંદભાઈ, હું તમને વાત કહું કે મારા બાપુજી પણ તમારી સંસ્થામાં સભ્ય હતા એક સમય, માવજીભાઈ ખોડા બોરીચા. At present 72 years completed. કુમાર બિપિનભાઈ કેશવભાઈ કુમાર, હીરાલાલ દેવજી ગોહિલ, હરજીભાઈ આલજીભાઈ રાઠોડ, તેમજ છેલ્લે તન મન ધનથી જેણે અમારી સંસ્થાને સાથ સહકાર આપ્યો છે એ બધી સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિ જો અહીંયા ઉપસ્થિત હોય તો નામ લો પ્રમાણે આવી જાય. ખારતરોડ મેઘવાળ પંચાયત,
મહાલક્ષ્મી વિકાસ સમિતિને આપી દીધું. રામદેવ નગર મેઘવાળ પંચાયતના કોઈ પ્રતિનિધિ છે?